Good morning, children. In the last class, we have done some questions of chapter 3. Almost we have completed this exercise. Today, I am starting miscellaneous exercise of chapter 3. Clear, children? Now, I am starting miscellaneous exercise of chapter 3. Matrices and determinant. The first question of matrices, first question of miscellaneous exercise is, let matrix A is equal to 0, 1 and 0, 0. Question number 1. A is equal to 0, 1 and 0, 0. This is one of the matrix. Clear, children? Show that AI plus BA whole raised to power n is equal to A raised to power ni plus n A raised to power n minus 1 n A raised to power n minus 1 BA, where I is the identity matrix. I is the identity matrix. Identity matrix. We have to prove this expression by mathematical induction method. Children, you all know very well what was mathematical induction. We have done this chapter. In class 11th. That was chapter 4. मैथमेटिकल इंडक्शन. कैसे कैसे हम इसमें प्रूव करते थे? पहले n की वैल्यू 1 लिया करते थे, फिर n की वैल्यू k लिया करते थे, फिर n की वैल्यू k प्लस 1 लिया करते थे, और तब उन दोनों को असेंबल करके हम देखा करते थे कि कोई टर्म n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ आई एम डूइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the expression. I is the identity matrix. A and B are simple numbers, natural numbers. A raised to power n I and A raised to power n minus 1 BA, where capital A is the matrix only. It's simply small a and B are numbers only, but capital A is the matrix that is given matrix. So first of all, I am putting n is equal to 1. Now put n is equal to 1. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करेंगे क्या है. लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां बताइए क्या आया. AI प्लस BA रेज टू पावर 1. और राइट हैंड साइड में देखते हैं अब क्या आता है. A raised to power 1 I n की वैल्यू 1 A raised to power 1 minus 1 BA, ये राइट हैंड साइड में. तो यहां क्या आया. AI प्लस BA. दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड. उधर क्या आया. AI प्लस A की पावर 0 हो गई, तो ये टर्म 1 बन गई. A raised to power 0 is 1. तो इधर भी BA बचा. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1. इट इज ट्रू फॉर 1. इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Clear, children? It is true for n is equal to 1. Now I am put n is equal to 1. n is equal to k. N is equal to k. So put k both the side. Value of n you can put a. So AI plus BA whole raised to power k. उधर A raised to power k I plus 1 not 1, that is k
a raised to power k minus 1 ba. Suppose this is equation 1. Clear, children? Sorry, this will be taken 1 and this will be taken 2. अब मुझे n की वैल्यू k पुट करनी है, k plus 1. पुट n is equal to k plus 1. अब मुझे n की वैल्यू k plus 1 पुट करनी है, तो इधर बताओ क्या आ जाएगा, ai plus ba whole raised to power k plus 1. And in the right hand side it will become a raised to power k plus 1 I plus k plus 1 into a raised to power k plus 1 पुट करेंगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो k बचेगा सिर्फ यहाँ एंड बी ए. ये आना चाहिए, फाइनली ये आंसर आना चाहिए हमारा k plus 1 के लिए. 11th क्लास में जो काम आपने किया था उसे याद करो कि ये फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए. अब ये कैसे कैसे आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके देखेंगे. देखो यहाँ रेज़ टू पावर 1 है, ये रेज़ टू पावर 1 और रेज़ टू पावर k. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आ जाएगा रेज़ टू पावर k plus 1. ai plus ba रेज़ टू पावर k plus 1 बन जाएगा. इसका और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ai plus ba whole raised to power k into ai plus ba raised to power 1. So this will become ai plus ba raised to power k plus 1. ये बन जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? अब यहाँ राइट हैंड साइड जो हमने डायरेक्टली लिखा है n की वैल्यू k plus 1 पुट करके राइट हैंड साइड ये आ जाता है. इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तब हम कहेंगे क्वेश्चन प्रूव हो गया. क्लियर? सो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना. अब लास्ट वर्क हमारा ये बचा है, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड. सो आर एच एस मल्टीप्लाइंग 1 and 2, RHS. So AI plus BA raised to power 1, and here A raised to power K I plus K A raised to power K minus 1 BA. ये राइट हैंड साइड, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए. तो देखो चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, a into a raised to power k plus 1. I into I होता है, क्योंकि जैसे 1 into 1 1 होता है. I into I होता है. So a raised to power k plus 1 into I प्लस, अब ai का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, a into a raised to power k minus 1. तो ये -1 पावर हट जाएगी यहां से, a raised to power k हो जाएगा. तो k a raised to power k into ba प्लस, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई ba into a raised to power k. So a raised to power k b into a. और जब कोई मैट्रिक्स कहीं लिखी होती है उसके पास आई मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती. जहां ए मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है वहां आई मैट्रिक्स लिखेंगे. जैसे यहां भी ए के पास ये स्मॉल ए है, इसके पास आई लिखेंगे. यहाँ बी के पास कैपिटल ए लिखा हुआ है तो आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो आई लिखने की जरूरत नहीं. प्लस दिस इंटू दिस, के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचा हमारे पास. अब ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस
इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, a रेज़ टू पावर k ba कॉमन ले सकते हैं। यहां से बचा k और यहां से बचा 1 प्लस इसमें क्या बचा k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब ओरिजिनली हमने इसका अभी तक यूज नहीं किया है। नाउ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर फाइंड करेंगे, a स्क्वायर 0 1 एंड 0 0 0 1 एंड 0 0, so this will become 0 0 0 0 ऐसा बन गया। ये हो गया 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो a स्क्वायर यहां आप देखेंगे ध्यान से a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा पूरा। a स्क्वायर विल बिकम 0 टोटली। सो व्हाट विल बी द अल्टीमेट आंसर? a रेज़ टू पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a रेज़ टू पावर k ba प्लस टोटल 0 a स्क्वायर की वजह से। पहले मैं एक बार 0 लिख दूं, k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया। सो आंसर इज a रेज़ टू पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a रेज़ टू पावर k ba प्लस 0। So this is the final answer। अब इसको और इसको आप क्रॉस चेक करें, ये दोनों सेम आंसर। सबसे पहले क्या काम किया आप लोगों ने, ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका बीच में कहीं जाके यूज होगा a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। a स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहां मैंने करके दिखाया है a इंटू ए, दैट इज 0 आंसर। तो सबसे बाद में जाके इसका यूज होगा। तो पहले ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर एन, ए रेज़ टू पावर एन आई एन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1 बी ए, इसको प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं सबसे पहले, आपको पता है। तो पुट एन इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या बन गया ए आई प्लस बी ए। राइट हैंड साइड में भी एन की जगह 1 पुट कर दो, तो ये भी बन गया ए आई प्लस बी ए। तो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, जब दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो हम कहते हैं इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। नाउ पुट एन इज इक्वल टू के। क्लियर चिल्ड्रन? अब एन की वैल्यू के पुट कर दी, तो ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के बन गया। उधर भी सब जगह जहां जहां एन लिखा हुआ है के लिख दो सब जगह। अब एन की वैल्यू के प्लस 1 पुट कर दो, के प्लस 1 ए रेज़ टू पावर के बी ए। अब ये फाइनल आंसर है हमारे पास, जो हमें अभी प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, रेज़ टू पावर 1 और रेज़ टू पावर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के प्लस 1। ऐसे राइट हैंड साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर लिया, सब कुछ ये आ गया। जहां i इंटू आई आया था तो मैंने लिखा i इंटू आई के इक्वल होता है, उस जगह मैंने सिर्फ i लिखा है, यहां i लिखा है। एक यहाँ a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इट विल बिकम 0 0 0, सो इट विल बिकम कंप्लीटली जीरो मैट्रिक्स। जब ये जीरो मैट्रिक्स बन गई तो a स्क्वायर की जगह उसे हम 0 पुट करें, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो हमारा आंसर क्या बचा? a रेज़ टू पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a रेज़ टू पावर k b a प्लस 0। सो ये फाइनल आंसर है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस आंसर। तो इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 आल्सो। सो एट लास्ट वी विल राइट इट इज ट्रू for k plus 1 also. Clear children? So that is the final answer. We will do one more question. Look here now.
Same question number 3, children. Question number 3. Question number 2 same, question number 3 same. So I am doing question number 3. A is equal to 3 minus 4. 3 minus 4, 1 minus 1. If a raised to power n is given, a raised to power n is given 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n. Prove it for n positive integers. Prove it by mathematical induction. Prove by PMI. Clear children? So now PMI. ये चैप्टर क्लास 11th में है, इसका थोड़ा बहुत यूज सिर्फ क्लास 12th में है, 2-4 क्वेश्चंस में, तो नो नीड टू वरी चिल्ड्रन. यहां देखिए आप, प्रूव बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो सबसे पहले मुझे n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखना है कि वो इसके इक्वल आता है कि नहीं आता. पुट n इज इक्वल टू 1. तो a रेज़ टू पावर 1 विल बिकम 1 प्लस 2 minus 4 into 1 minus 2 into 1. तो a raised to power 1 will become 1 plus 2, ये हो गया 3, ये हो गया minus 4 और ये 1 और ये minus 1. That is completely equal to a. So it is true for n is equal to 1. It is true for n is equal to 1. Now put n is equal to k. Put n is equal to k. K put कर देते हैं अब इसकी जगह. So it will become a raised to power k is equal to 1 plus 2k minus 4k and k and 1 minus 2k. Clear children? अब a raised to power k plus 1. This was first. This is second. Now a raised to power, put n is equal to k plus 1. So a raised to power k plus 1 will become equal to 1 plus 2 into k plus 1 minus 4 into k plus 1. K 1 minus 2 into k plus 1. अब हमें ये प्रूव करना है. पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे देखें आप. वो 3k 2k प्लस 2, तो ये हो गया 2k प्लस 3 माइनस 4k प्लस 1, सिंपली k और 1 माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2k माइनस 1 बन गया. सॉल्व करने के बाद ये है. अब सेम प्रोसीजर वंस अगेन, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 बन जाएगा. इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए. क्लियर चिल्ड्रन? सो राइट हैंड साइड multiplying 1 and 2. So multiply 1 and 2. Multiply 1 and 2. So a raised to power 1 into a raised to power k will become equal to 3 into minus 4, 1 and minus 1. And 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k. क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो. 3 into 3 plus 6k minus 4 into k. 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ. अब 3 का मल्टीप्लाई इसके पास माइनस 12k और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 4 प्लस
4 2 जा 8k, 1 into 1 plus 2k or minus k, 1 into minus 4k and minus 1 into this minus 1 plus 2k, ये बना हमारा मल्टीप्लीकेशन. सो दैट इज a रेज टू पावर k प्लस 1 आल्सो. इन दोनों का मल्टीप्लाई a रेज टू पावर k प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. a रेज टू पावर k प्लस 1 विल बिकम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6k minus 4k, तो 2k plus 3 minus 12k plus 8k, तो minus 4k minus 4 minus 4k minus 4, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस 4 इंटू के प्लस 1. 2k में से k गया, k बचा, तो ये बचा k प्लस 1. अब यहां देखें चलो, माइनस 4k प्लस 2k, दैट इज माइनस 2k माइनस 1. इसे ठीक कर लीजिए चिल्ड्रन. यहां k की जगह k प्लस 1 आएगा, ये k प्लस 1. जब हम k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये टर्म भी k प्लस 1 हो जाएगी. नाउ यू कैन लुक थर्ड एंड फोर्थ. तो कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ यू कैन गेट द सेम आंसर. तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो. क्लियर चिल्ड्रन? पहले a रेज़ टू पावर 1 ये था, फिर n की वैल्यू k पुट करी तो ये आया. इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा. आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस थिंग, 2k plus 3 minus 4 into k plus 1, k plus 1 and minus 2k minus 1. So that is final answer. So it is true for k plus 1 also. So it is true for n is equal to k plus 1 also. Clear children? So take one more question. Question number 4. If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. A and B are symmetric matrix. Question number 4 children. A and B are symmetric matrix. इसका मतलब ये होता है A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B. A and B are symmetric matrices. सिमेट्रिक मैट्रिसेस का बताया कि A ट्रांसपोज करने के बाद उसकी वैल्यू A के इक्वल रहती है. और इसकी सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था कि A ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस A बन जाती है. A डैश इज इक्वल टू माइनस A एंड B डैश इज इक्वल टू माइनस B फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक के लिए A डैश की वैल्यू A रहती है और B डैश की वैल्यू B रहती है, और इसकी सिमेट्रिक में माइनस बार आ जाता है और डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं. ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान. क्लियर? So these two matrices are symmetric matrices. Symmetric है तो we can write A dash is equal to A and B dash is equal to B. What about AB minus BA? Question is that what about AB minus BA? ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? It is symmetric matrix और skew symmetric matrix. ये कंप्लीट जो कंबाइंड मैट्रिक्स आपकी पूरा ब्रैकेट जो दिख रहा है, इस ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? ही इज आस्किंग अबाउट दिस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी. एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वी नो दैट. नाउ सॉल्यूशन. वी नो दैट ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी. क्लियर चिल्ड्रन? तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. नाउ वी है now what we have AB minus BA.
ए बी माइनस बी ए के ऊपर मैं ट्रांसपोज करके देखता हूं। इसको ट्रांसपोज करने के बाद मुझे देखना है, अगर ये ऐसा का ऐसे आंसर रहता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। अगर इसको चेंज करने के बाद, इसमें फॉर्मूले लगाने के बाद अगर ये मैट्रिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है, इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स एज इट इज रहती है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसे चेंज करने के बाद ये इसमें माइनस बाहर आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सो ए बी माइनस बी ए कैन बी रिटन ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। क्लियर? अब ए बी होल डैश का हमारे पास फॉर्मूला है, तो ए बी होल डैश कैन बी रिटन बी डैश ए डैश एंड बी ए होल डैश कैन बी रिटन बी डैश ए डैश। क्लियर चिल्ड्रन? और हमें पता है ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी। ए डैश को ए लिख सकते हैं और बी डैश को बी लिख सकते हैं, तो बी डैश ए डैश इसको लिख देंगे बी और इसको लिख देंगे ए, और ये बन जाएगा बी डैश ए डैश, ये बी ए होल डैश, सॉरी चिल्ड्रन, ए बी होल डैश का फॉर्मूला क्या हुआ बी डैश ए डैश, और बी ए होल डैश का फॉर्मूला क्या हुआ ए डैश बी डैश। क्लियर? सो बी डैश की जगह बी लिख देंगे, ए डैश की जगह ए लिखेंगे। दिस इज ऑलरेडी गिवन हियर आल्सो। अब माइनस कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी। तो घूमते फिरते हमें क्या पता चला कि माइनस बाहर आ गया इसमें से। अगर माइनस बाहर आ जाता तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियरली इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूं, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज करके देखा। ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होता है उसे उसका ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी होल डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा बी डैश ए डैश एंड ए बी ए होल डैश का ट्रांसपोज ए डैश बी डैश। एंड वी ऑलरेडी नो ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। तो बी डैश कैन बी रिटन बी, ए डैश कैन बी रिटन ए डैश कैन बी रिटन ए एंड बी डैश कैन बी रिटन बी। So this will become BA minus AB। इसकी वैल्यू BA minus AB बन गई। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये AB minus BA आ जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा आ जाएगा लेकिन माइनस बाहर आएगा। तो क्लियरली वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन? ही वाज आस्किंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स और व्हाट अबाउट ऑफ दिस मैट्रिक्स। AB minus BA is symmetric or skew symmetric matrix. So we have proved AB minus BA is skew symmetric matrix. Clear? Do one more question, children. Now I am taking question number 11, children. Find the matrix X so that X into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7, minus 8, minus 9, 2, 4, 6, ये X मैट्रिक्स। फाइंड X मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, हमको ये भी नहीं पता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ X मैट्रिक्स। इट इज ऑर्डर ऑफ 2 by 2, इट इज ऑर्डर ऑफ 2 by 3 और इट इज ऑर्डर ऑफ 3 by 2 etc etc. It can have any order. So first of all we have to find the order of this matrix. If we multiply two matrices, so what is the important thing to multiply? What is the essential thing? जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें? फॉर एग्जाम्पल
देखिए जरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए 2 इंटू 3 और इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो बीच का नंबर सेम होना चाहिए। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मैट्रिक्स, सपोज दिस मैट्रिक्स इंटू 2/3 एंड दिस मैट्रिक्स इंटू 3/2, तो ये मैट्रिक्स इसका ये नंबर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो इस मैट्रिक्स का बाद वाला नंबर हमें पता चल गया 2। अब पहले वाले नंबर का हमें नहीं पता। पहला वाला नंबर कैसे पता लगाते हैं, जब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा 2/2 का। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जो आंसर की मैट्रिक्स आती है उसका ये ऑर्डर होता है, ये आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। आंसर टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर शुड बी सेम and after multiplication the order of the answer matrix should be 2/2, ये दो एक्सट्रीम नंबर। क्लियर? तो मुझे अब ये पता चल गया कि ये नंबर तो यहां मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर का इसके साथ इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, और आंसर कैसा आ रहा है 2/3, तो इधर भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो हमने कैसे पता लगाया इस मैट्रिक्स के ऑर्डर का, एक्स मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि ये नंबर इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो ये बाद वाला नंबर तो हमें पता चल गया। पहले वाले नंबर की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि आंसर का ऑर्डर क्या है 2/3, तो जो किनारे वाले नंबर हैं वो आंसर के ऑर्डर होते हैं। तो दिस इंटू दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द आंसर मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन? तो वी हैव फाउंड द ऑर्डर ऑफ द एक्स मैट्रिक्स फर्स्ट। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स। सो लेट x इज इक्वल टू a b c d ऑफ ऑर्डर 2/2। अब मैं इसको ले लेता हूं a b c d into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2/2 2/3 एंड 2/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए ये दो नंबर सेम होने चाहिए और आंसर का ऑर्डर ये होना चाहिए। सो वी आर मल्टीप्लाइंग a इंटू बी, दिस वन, तो 1 इंटू a प्लस 4b, a प्लस 4b, सिमिलरली 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, सिमिलरली 3a प्लस 6b। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d, ये मल्टीप्लाई हुआ एंड दैट इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर देंगे। तो वी आर हैविंग a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। क्लियर चिल्ड्रन? ये दो एलिमेंट मैंने इन दोनों से कंपेयर कर दिए। अब इन दोनों को इन दोनों से कंपेयर कर रहा हूं। वी आर हैविंग 4 इक्वेशंस। So c plus 4d is equal to 2 and 2c plus 5d is equal to 4. Clear children? So solving these two first. तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2a plus 8b is equal to -14
और 2a plus 5b is equal to -8. So after elimination method, using elimination method, this and this cancel. 8b minus 5b, 3b will become equal to 14 minus 8, 6, minus 6. So b is equal to -6/3, that is -2. So b की वैल्यू हमें पता लगे -2. So putting the value of b in either of the equation, so 2a plus 5 into -2 is equal to -8. So 2a is equal to -8 plus 10. So 2a is equal to 2. So a is equal to 1. Similarly, using these two equations, 2c plus 8d is equal to -14 plus 4. c plus 2c plus 8d is equal to 4. And 2c plus 8d 5d is equal to 4. So minus minus minus. So these two terms are cancelled. So 3d is equal to 0. So d will become equal to 0. Clear, children? So after getting the value of d equal to 0, we can put in either of the equation. 2c plus 8 into 0 is equal to 4. So 2c is equal to 4, c is equal to 2. So after finding the value of a, b, c and d, we can get the value of x. So x matrix will be equal to 1, 2, minus 2, c is 2 and d is 0. This was x matrix. Clear, children? So this was the end of the chapter miscellaneous, end of the chapter 3. That was matrices and matrices only. We will start next chapter, determinant. Clear, children? So tomorrow or day after tomorrow we will be starting chapter 4, that is determinant. Clear, children? Thank you and have a nice day.